Shall we start? So here we go with banking. Banking, yesterday we started it. We completed one question, and one question was very simple. What we said was, income in case of non-performing asset should be recognized on received basis. But in case of performing asset, it should be recognized on accrual basis. That's it. So that's what we saw. Today now what are we going to say is, what happens if there is an NPA? What happens exactly? In case an NPA is there in the books, in case there is an NPA in the books, like Vijay Mallya, right? Then my dear friend, they are not a good thing for bank. Not a good thing for bank. Now why they are not a good thing? Because bank will have to debit their profit and loss account and create a provision. I am requesting you to understand the entry P&L account or revenue account to provision. Alright. I am requesting you, the entry is P&L account debit to provision account. That is to say, I am debiting my P&L account and I am creating a provision. Are you getting my point? Now comes a question, how you decide this amount. ये amount decide होती कैसे है? So this amount is decided, my dear friend, with a simple logic of RBI guidelines. There are RBI guidelines, and on the basis of RBI guidelines, you decide what should be the amount of provision. Are you getting my point? So let us see how does it go. These are some of the provisioning norms which you should see. Okay, now listen. The way business organization creates provision for doubtful debts against debtor, similarly bank has to create provision in respect of each type of asset. Now, what are the norms? These norms got revised around 4 years back. Norms क्या है देखिए? Standard asset. Now comes a question, what is a standard asset? Don't worry, I'll help you out. What are the standard asset? Standard asset means those assets which don't have any risk. Which don't have any risk. How they are? They are like आज ड्यू डेट है, agreed? कहां पे ड्यू डेट? ये यहां पर. यहां से लेकर 90 डेज तक ये एसेट होती है स्टैंडर्ड. मतलब ड्यू डेट के बाद में भी कितना पीरियड दिया जाता है? 90 डेज. द एसेट इज स्टैंडर्ड. सो दैट मीन्स देयर इज नो रिस्क दैट द मनी विल बिकम बैड डेट्स. एग्रीड? दे हैव ओनली गॉट द नॉर्मल रिस्क. इवन इन केस देयर इज अ नॉर्मल रिस्क, बैंक क्या बोलती है? आरबीआई गाइडलाइन क्या बोलती है? कि आप उसके ऊपर क्रिएट करो आरडीडी एट व्हाट रेट? 25%. नॉट 25%, सॉरी, 0.25%. रेसिडेंशियल एंड हाउसिंग loans beyond 20 lakhs. This was for agriculture and small and medium scale enterprise. अगर हाउसिंग लोन के लिए तो 1%, अगर स्पेसिफिक सेक्टर है जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह तो 2%. बट माय डियर फ्रेंड, बाय एंड लार्ज इट इज हाउ मच? अदर्स नॉट कवर्ड अबाउट 0.40%. एग्जाम में जो आता है वो ये वाला आता है, आपको याद करना पड़ेगा 0.40%. आर यू अंडरस्टैंडिंग द नॉर्म? What is that? 0.40%. So have you understood till this point? It is how much? 0.40%. Is that okay? Lovely. Now listen to me carefully. What is the next? Substandard asset. Now what are the substandard asset? The asset which has become NPA. An asset which has become NPA, मतलब after 90 days are called as substandard. Substandard का नाम क्या देंगे? NPA.
अब सब स्टैंडर्ड एसेट्स एनपीए में अलग अलग टाइप है, जैसे मैंने कल बताया था, एक छोटा चोर उचक्का, एग्रीड, और फिर उसके बाद में एक टेररिस्ट, राइट, और फिर एक साइबर क्राइम करने वाले, ऐसे अलग अलग टाइप के उनकी लेवल होती है कि कौन से टाइप का आप चोर हो। तो बेटा जी सब स्टैंडर्ड एक होती है, एक होता है डाउटफुल, एम आई कम्युनिकेटिंग, और एक होता है लॉस एसेट। लॉस एसेट्स मतलब दिस पीपल आर होपलेस, यू कैन नॉट रिकवर एनीथिंग, लॉस एसेट। सो सी सब स्टैंडर्ड एसेट इररिस्पेक्टिव ऑफ ईसीजीसी कवर एंड सिक्योरिटी अवेलेबल, इसको पेंडिंग करते थोड़ी देर के लिए। द अमाउंट इज हाउ मच 15%। द अमाउंट इज हाउ मच 15%, मतलब सब स्टैंडर्ड के लिए द एनपीए प्रोविजन इज 15%। मूविंग ऑन, इफ यू गो टू द डाउटफुल एसेट, आई रिपीट, डाउटफुल में सिक्योर्ड, डाउटफुल में क्या सिक्योर्ड, और सिक्योर्ड कितना, अप टू 1 ईयर, then my dear friend 25%, 1 to 3 year, then it is 40%, and my dear friend more than 3 years it is how much, 100%. So word the secured portion up to 1 year, it is how much, 40%, then sorry 25%, then 1 to 3 years 40%, and then my dear friend 100%. Moving on, doubtful asset unsecured portion, it is 100%. And then my dear friend loss asset is always 100%. So let me give you a summary of this in our own language. देखो कैसा है, आपके इसमें प्रिंटेड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, फर्स्ट वन स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट्स it is 0.40%. All right, then there is next one substandard, then it is how much, 15%. After substandard, my dear friend, I'll write down doubtful. Doubtful for how many years? 1 year, up to 1 year. Up to 1 year, I'll increase my percentage by 10%, it would be 25%. 1 to 3 years, it is 40%. And my dear friend, the last one is loss asset. No, more than 3 years. More than 3 years, it is how much? 100%. I will also request you to understand one more point, that is what? These assets are secured. These assets are what? Secured. Post that, fourth one is what? Unsecured. Unsecured, doubtful is how much? 100%. And the last one, loss asset, is how much, my dear friend? 100%. Boys and girls, this unsecured portion, no relevance of timing. No relevance of timing. मतलब इसमें डाउटफुल हुआ तो देखना नहीं डाउटफुल कितने समय तक है, 1 साल तक है, 1 से 3 साल तक है, ये देखना ही नहीं है। अनसिक्योर्ड हुआ तो डायरेक्टली 100%। मतलब हम यहां पर क्या कर रहे थे, अगर सिक्योर्ड था तो हम पीरियड भी चेक कर रहे थे, बराबर है ना। यहां पर कोई पीरियड चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जरा आपकी सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये पीरियड काउंट कैसे होता है। तो ऐसा होता है, पहले ये परफॉर्मिंग एसेट होता है, परफॉर्मिंग एसेट पर 0.40%। फिर परफॉर्मिंग के बाद में मान लो इस आदमी ने पैसे दिए नहीं, तो ये क्या बन जाता है बेटा जी, सब स्टैंडर्ड। इज दैट ओके? सब स्टैंडर्ड बेटा जी, सब स्टैंडर्ड का एक पीरियड खत्म होने के बाद में ये बन जाता है डाउटफुल। डाउटफुल के फिर उनके कुछ क्राइटेरिया है। डाउटफुल कितने दिन तक था? अप टू 1 ईयर, 1 to 3 years एंड मोर देन 3 years, यस और नो। और लॉस एसेट ऐसी एसेट होती है जिसको ऑडिटर कह देता है कि इससे पैसा नहीं आने वाला, या बैंक ये डिक्लेयर कर देती कि शायद इससे पैसा नहीं आए, इन दैट केस इट इज ट्रीटेड एज लॉस एसेट। इज दैट ओके? सो ये परसेंटेज बताया गया आपको। नाउ माय डियर फ्रेंड, from the following particulars you are required to compute the amount of provision to be shown in the profit and loss account of ABC Bank Limited। एक क्वेश्चन अभी हम सिर्फ देखेंगे, ये देखो स्टैंडर्ड एसेट, जरा मुझे बताओ तो स्टैंडर्ड एसेट पर कितना परसेंटेज? 0.40%। सब स्टैंडर्ड एसेट कितना? 15%। डाउटफुल एसेट नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी, नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी मींस व्हाट? अनसिक्योर्ड, कितना आएगा?
100%. डाउटफुल असेट कवर्ड बाय सिक्योरिटी, इसके नीचे हम देखेंगे अप टू 1 ईयर 25%, अप टू 3 इयर्स 40%, अप टू 4 ईयर 100%, एंड लॉस असेट 100%. तो बता बेटा प्रोविजन कितना आएगा? 5000 इंटू 40%, 0.40. 5000 इंटू 0.40 कितना आ रहा है? कुछ आवाज नहीं आ रही है. 20. एंड देन 1120 इंटू 15%, 168. वेरी गुड. 200 इंटू 100%, 200. अप टू 1 ईयर 25%, 12.5. 300 इंटू 40% इज 120. 300, 200. Take the total of this whole provision. 1020.5. This is what you want to say? Okay, so what is the entry? P&L account debit to provision for doubtful debts. It is how much? 1020.5. 1020.5. Happy? तो चलो देखो इसका आंसर कैसे आएगा. वन 1020.5 आ गया. ये क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना है. इज दैट ओके? ये क्वेश्चन आपके इसमें नहीं है प्रिंटेड, ये आपको लिखकर सॉल्व करना है. सो इधर आ जाओ, ये लिखो. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, from the following particulars, from the following particulars, you are required to compute, the amount of provision, to be shown in profit and loss account, of ABC Bank Limited. ठीक है बेटा? चलो क्वेश्चन लिख लो. पर्टिकुलर्स रुपीज लैक्स. ये लिख लिया यहां तक? आंसर नहीं लिखा ना? आंसर का प्रेजेंटेशन मैं बताता हूं एग्जाम में कैसे करना है. हो गया ना यहां तक? नाउ हाउ डू यू प्रेजेंट दिस? असेट्स परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ प्रोविजन. ये देखो स्टैंडर्ड असेट विल राइट डाउन 0.40. एग्जाम में 0.40% आपको नहीं दिया जाएगा. यू विल हैव टू राइट इट ऑन योर ओन. तो एग्जाम में जाने के पहले रिवाइज करके जाना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है.
देखो या तो यहां पर आएगा या ईसीजीसी के क्वेश्चन में आएगा या फिर आएगा आपके फाइनल अकाउंट में, तो चांसेस अच्छे बनते हैं कि इसका क्वेश्चन आएगा शायद से। और अगर आपको परसेंटेज मालूम नहीं है तो उसकी वजह से ही सिर्फ आपके मार्क्स जाएंगे। सो डोंट डू दैट, डू इट प्रॉपरली। ऑलराइट, सो कितना आएगा बेटा? 5000 इंटू 40%, 0.40, एंड द अमाउंट इज 20। यू कैन ड्रॉ द फॉर्मेट, you can draw the format. Are you ready? ये देखो, सब स्टैंडर्ड एसेट के ऊपर 15%, डाउटफुल secured asset less than 1 year, greater than 1 year but less than 3 years, greater than 3 years, or unsecured portion or loss asset. So the total amount stands to rupees 1020.50. Very good. So have you completed this? क्या बेटा? अरे ये 25% है यहाँ पर, ये 25 नहीं, ये कितना है? बराबर तो है 25, यहाँ पर गलत है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर सही है। अब सही है? हाँ ठीक है। कॉपी मत करना, लाइक सब लोगों ने किया अपने आप से। हो गया जी? बाकी परसेंटेज राइट है। हो गया? अब सुनिए मेरी बात अगली। मैं आपको अभी एनपीए की स्टोरी सिखाता हूं। मैं जो पढ़ाता हूं ना, तो एक स्टोरी सुनाकर उसको कंप्लीट कर देता हूं सारे कंसेप्ट्स। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट स्टोरी अबाउट ईसीजीसी कवर। व्हाट आर ईसीजीसी कवर एंड ऑल? लुक एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी। नाउ दिस इज अ बैंक एंड दिस इज एक्सपो फ्रंट, दैट इज नथिंग बट एन एक्सपोर्ट हाउस। ओके, बैंक सैंक्शनड अ term loan of rupees 70 lakhs. 70 lakhs. All right. Firm provided building as security. Okay. Value of the building is 50 lakh and realizable value of the building is 20 lakh. What do you mean by this? देखो, जब बैंक ने लोन दिया था 70 लाख का
और उनसे एक असेट मांगी थी कि तुम्हारी कौन सी असेट गिरवी रखोगे, तो उसने कहा कि मैं मेरी बिल्डिंग रखता हूं। उन दिनों में बिल्डिंग की वैल्यू बहुत अच्छी थी, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहे थे, तो बिल्डिंग की वैल्यू पकड़ी गई 50 लाख रुपए। सो बैंक ने उस बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख कंसिडर की और कहा कि सिक्योरिटी मुझे मिल गई 50 लाख की। जिस दिन लोन दिया था उस दिन की बात है। इस नलायक ने फिर पेमेंट नहीं किया, इस नलायक ने क्या किया, पेमेंट नहीं किया। अब हो क्या जाता है कि आपके पास रह जाता है बिल्डिंग को बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता आपके पास। तो अगर आप बिल्डिंग को बेचोगे, बेचा नहीं है, यदि बिल्डिंग को बेचा तो कितने रुपए मिलने वाले हैं? यू आर गोइंग टू रिसीव ओनली 20 lakhs। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान से सुनिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं। अगली बात बेटा, बिल्डिंग की दो वैल्यूज आपको समझ में आ गई। एक कौन सी है? वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, और कौन सी है? एक रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। लेस सिक्योरिटी ऑफ द बिल्डिंग 20 lakhs, एग्रीड। और आपका भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक इज 50 लाख। ठीक है, अब मैं आपको इसकी पहले की स्टोरी बताना रह ही गया, वो स्टोरी बताता हूं हुआ क्या था। ये आदमी है ना एक्सपो फ्रंट, इनके पास जाके आ गया था बैंक के पास कि मुझे लोन दो ना प्लीज। बैंक ने उसको एक थप्पड़ मारी, बोले गेट लॉस्ट होपलेस चैप, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द लोन। ये रोते रोते वापस आ गया। फिर एक दिन भारतीय सरकार ने कहा कि हमारे लोगों ने यहां से चीजें एक्सपोर्ट करनी चाहिए आउट ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमको फॉरेन करेंसी मिलेगा। तो ये आदमी गया और चिल्लाया पॉलिटिकल पार्टीज को, अरे होपलेस चैप, झूठे, मक्कार, ऐसी बातें करते हो तुम, हमें कहते हो एक्सपोर्ट करो। मैं गया था एक्सपोर्ट करने के लिए, मैं गया था एक्सपोर्ट करने के लिए, मैं सोच रहा था कि मैं एक्सपोर्ट करूं। मैं गया था बैंक के पास लोन लेने के लिए, सोचा देश का कुछ भला करूं। बैंक ने लोन नहीं दिया, तुम्हारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी, लोन नहीं दिया। क्या काम की तुम्हारी स्कीम? फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला बस इतनी सी बात है ना कि तुझे लोन नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छे काम के लिए लोन सैंक्शन करवा कर देती है। गवर्नमेंट अच्छे काम के लिए उनके प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से लोन सैंक्शन करा कर देती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा तो एक काम कर, अभी जा बैंक के पास और बैंक को बोल कि मैंने तुझे भेजा है। तो बोले मैंने तुझे भेजा है, तो वो बोलने के बाद में कैसे दे देंगे? तो बोलने का ऐसा नहीं, मैं तेरे को एक लेटर दे रहा हूं जिसको कहते हैं ECGC कवर, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने कहा, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने कहा कि इस व्यक्ति का गारंटी मैं लेता हूं कि यदि इसने पेमेंट नहीं किया तो मैं करूंगा। ये कौन देता है गारंटी? ECGC। ये गवर्नमेंट बॉडी है। अब गवर्नमेंट बॉडी ने क्या कर दिया? गारंटी तो दे दी। अब गारंटी देने के बाद में क्या होता है कि आदमी निश्चिंत हो जाता है, ही इज रिलैक्स नाउ, ही डज नॉट मेक द पेमेंट ऑफ मनी। अब बैंक रोने लगती है, इधर बैंक की समझो आंखें ऐसा, तो बैंक रो रही है एकदम जोर जोर से, क्योंकि ये नालायक पैसा दे नहीं रहा है। और ये बैंक पहले लोन देने को तैयार ही नहीं थी। कहां तैयार थी लोन देने के लिए? लाइन तैयार थी? नहीं। वो तो नालायक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारी ECGC ऑर्गेनाइजेशन है, वो गारंटी दे रही है, तुम लोन दो, कंपलसरी देना पड़ेगा। बैंक ने कंपल्शन में लोन दे दिया। इधर वो दूसरा नालायक एक और बैठा है आदमी, RBI, वो उसकी चाबुक चलाता है और बोलता है NPA हुआ, तू पैसा नहीं दे रहा है ना ये आदमी, चलो क्रिएट करो इसके ऊपर प्रोविजन। बैंक रो रही है, बैंक कह रही है अरे मैं तो नहीं दे रही थी पैसे इसको नालायक को, ये बीच में ECGC घुसी और बोला पैसे दो, और मैं नहीं दे रहा था तो मुझे जबरदस्ती कराया भारतीय सरकार ने। ये तो गलत है, मैं NPA नहीं कर रहा क्रिएट। तुमको लॉजिक समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दिया गवर्नमेंट के कहने पर, मगर अब बैंक के ऊपर चाबुक चल गई किसकी? NPA की, क्योंकि ये नालायक पेमेंट नहीं दे रहा है। तो फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया गया NPA के नॉर्म्स में, जिसमें यह कहा गया कि यदि किसी लोन के लिए भारतीय सरकार द्वारा दी गई गारंटी हो तो उस गारंटीड अमाउंट तक भले ही वो कितना ही साल पुराना लोन क्यों ना हो, 4 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, कितना भी पुराना लोन क्यों ना हो, आप उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट नहीं करोगे NPA का। एग्रीड? मगर उसका फॉर्मेट कई सारे बच्चे गलत करते हैं। फॉर्मेट क्या गलत करते हैं? देखो बच्चे है ना, अरे क्या होगा, सुनता क्यों नहीं है?
अरे कमाल है। एग्रीड। तो फॉर्मेट क्या गलत होता है जरा ध्यान से देखो। बच्चा क्या करता है, 70 लाख के ऊपर ही ईसीजीसी कवर माइनस कर देता। नहीं, ऐसा नहीं चलता। आपको पहले रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस करनी पड़ती है। आई रिपीट सर, फर्स्ट वन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सब्सट्रैक्ट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी वाज हाउ मच, 20 lakhs। डायरेक्टली ईसीजीसी कवर मत कैलकुलेट करो, कितना आ गया, 50 लाख। अब मैं आपको बताता हूं ईसीजीसी ने कितने की गारंटी दी थी, 40%। रिमेंबर, ये 40% की गारंटी यदि आपने डायरेक्टली 70 लाख पर कैलकुलेट किया तो आपका आंसर रॉन्ग है। आपको पहले लेस करना पड़ता है रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू लेस करने के बाद में 50 लाख है। 50 लाख का 40% का गारंटी किसने उठाया, ईसीजीसी ने। तो ये देखो 40% ये लेस किया, इसके ऊपर कोई एनपीए नहीं होता है, तो अभी क्या रह गया, अनसिक्योर्ड पोर्शन 30 lakhs। तो अगर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं ये 70 लाख का टर्म लोन, तो कुछ इस तरीके से होगा। सेक्योर्ड is 20 lakh, then guaranteed by ECGC, Export Credit Guarantee Corporation, guaranteed by them is how much, 20 lakh, and the remaining portion is unsecured. Unsecured कितना है बेटा जी, it is remaining 30 lakhs। ये समझ में आता है क्या, ये किसको नहीं समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा लोन 70 lakhs का है, उसमें से हमारे पास रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना है, 20 लाख। सो कांट आई से इट इज अ सिक्योर्ड लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 20 लाख, सो द सिक्योर्ड पोर्शन इज दिस मच। नाउ माय डियर फ्रेंड, गारंटीड कितनी की मिली है, तो गारंटी मिली हुई है 20 लाख की। सो 20 लाख इज गारंटीड बाय ईसीजीसी एंड द रिमेनिंग इज व्हाट, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड पर 100%, गारंटीड बाय ईसीजीसी पर 0%, और सिक्योर्ड पर 20 lakhs पर डिपेंडिंग अपॉन कितना साल पुराना है, उसके बेसिस पर आपको करना पड़ेगा। अगर डाउटफुल है 1 साल तक तो कितना करना पड़ेगा, 25%, नहीं तो 40%, नहीं तो कितना, 100%। आपको क्लिक हो रही है चीजें मैं क्या कह रहा हूं, यस। तो बस ये वाली चीज आपने नहीं सीखी। ऑलराइट, प्रोविजन इज प्रोवाइडेड ओनली ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन। हाउ टू डू इट, सो फॉर्मेट क्या है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग, ये आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है, प्लीज चेक कर लीजिए। बैलेंस आउटस्टैंडिंग, हाईलाइट द वर्ड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी पहले लेस करेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी पहले लेस करेंगे। इज दैट ओके? कभी भी घाई मत करना, डायरेक्टली इसके ऊपर मत निकालना ईसीजीसी कवर, रियलाइजेबल वैल्यू पहले लेस करो, फिर बैलेंस पोर्शन को आप क्या करोगे, एक्सटेंट ऑफ ईसीजीसी कवर माइनस करोगे। रिमेनिंग इज व्हाट, नेट अनसिक्योर्ड पोर्शन। अब प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कैसी होगी, अनसिक्योर्ड पोर्शन पर 100% ऑफ अनसिक्योर्ड पोर्शन, बराबर है ना, एग्रीड, क्योंकि डाउटफुल एंड अनसिक्योर्ड 100%। बट बेटा जी फॉर सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ एडवांस, अमाउंट इनटू अप्रोप्रिएट परसेंटेज, अमाउंट इनटू अप्रोप्रिएट परसेंटेज। एंड व्हाट इज द अप्रोप्रिएट परसेंटेज, इट कुड बी 25%, 40% और 100%। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो चलो एक क्वेश्चन है क्या, देखो आपके इसमें प्रिंटेड, यही क्वेश्चन है क्या, रजत पिता बैंक लिमिटेड हैड एक्सटेंडेड द फॉलोइंग क्रेडिट लाइन, ये नहीं है, हाँ जी, अच्छा पैकिंग क्रेडिट, अमाउंट ये है क्या, चलो ये बाद में करेंगे फिर। वन हो गया था हमारा, राइट, यस, हियर वी गो। So the packing credit outstanding from food processors is 60 lakhs
against which bank holds security of 20 lakhs, right? And the realizable value of the security is given. How much is the realizable value of security given? अरे क्या हो गया? The realizable value is 75%, isn't it? So can you please tell me what would be the realizable value? 20 lakh into 75% is equal to 15. इसका वैल्यू 15 हो जाएगा ना? अब आगे क्या है? 40% is covered by ECGC limited to 16 lakh. अपर लिमिट भी दिया है 16 लाख. The above advance has remained doubtful up to 3 years. Calculate the amount of provision required to be made. अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं. 60 माइनस रियलाइजेबल वैल्यू कितना है बेटा? 15 बचा कितना? 45. ECGC कवर कितना है बेटा? 45 का 40% कितना आ रहा है? हाउ मच? 18. कैन आई टेक 18? हाउ मच दे हैव सेड? लिमिटेड टू 16. सो आई विल सब्सट्रैक्ट 16. सो व्हाट इज द बैलेंस? 45 minus 16, 29. So 29 is unsecured. 29 पर फुल प्रोविजन होगा. और जो बेटा जी ये 15 है ये सिक्योर्ड पोर्शन है क्या? मगर ये कितने साल से डाउटफुल है जरा देखो. रिमेन डाउटफुल अप टू 3 years. तो बेटा कितना परसेंटेज आता है? 40%. जरा देखो तो. अमाउंट आउटस्टैंडिंग 60. ये आपके यहां पर लिखा हुआ नहीं. अमाउंट आउटस्टैंडिंग 60 है बेटा जी. फिर नेक्स्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 15. फिर क्या है आपका वैल्यू? 45. 45 में से ECGC कवर मैक्सिमम कितना? 16 लाख. 40% ऑफ 45 लाख इज 18. आई टेक विच एवर इज लोअर. तो बचा कितना? 29. 29 पर प्रोविजन कितना होगा? फुल 29. और जो ये है ये 15 ये सिक्योर्ड पोर्शन है ना. ये समझ में आता है ना? सिक्योर्ड पोर्शन का अप टू 3 years का परसेंटेज नॉर्म कितना है? 40%. यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड आई सेड सिक्योर्ड पोर्शन का 40% 6. सो लवली बॉयज एंड गर्ल्स, यू टेल मी टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड इज 35. हाउ? 29 plus 6. हैव यू अंडरस्टूड दिस? राइट डाउन द जर्नल एंट्री. राइट डाउन द जर्नल एंट्री. P&L account debit. P&L account debit. 2. Provision for NPA. Provision for NPA. How much? 35, 35. चलो एक क्वेश्चन हम और करेंगे बेटा. ये क्वेश्चन हम ओरली करेंगे. आप मुझे बताओ क्या क्या फिगर्स आएंगे. ठीक है? सो लेट्स डू इट ओरली. रजत पिता बैंक लिमिटेड had extended the following credit line to small scale industry which had not paid interest since March 2004. 2004 मार्च से पेमेंट नहीं कर रहे. आज तारीख कितनी है बेटा? 2010. तो बेटा जी ये तो डाउटफुल 3 साल के ऊपर हो गया. पहले ये रहा होगा सबस्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड के बाद में बना होगा डाउटफुल, और डाउटफुल ये 3 साल के ऊपर हो गया ऑलरेडी. ठीक है? तो बेटा जी 35 लाख है. और जैसे ECGC कवर होता है वैसे DICGC कवर भी होता है गवर्नमेंट के. ऐसे अलग अलग स्कीम चलती है. तो बेटा जी 35 लाख है और कवर है 40% का. सिक्योरिटीज हेल्ड है 15. रियलाइजेबल वैल्यू इज हाउ मच? 10. तो चलो जल्दी से मुझे बताओ पहले 35 माइनस हाउ मच? 10. कितना आएगा? 25. 25 का 40% कितना आता है? 10. तो बचा का वैल्यू कितना? 15. 15 पर 100% और 10 पर भी कितना? 100%. और ये 10 पर नो प्रोविजन. ऐसे ही होता है ना? तो कितने का प्रोविजन होगा? 25. वेरी गुड. चलो इसका बताओ भी कैसे करेंगे. 30 लेस 8 22 50% मतलब कितना? 11. कितना बच गया? 11. तो 11 लाख पर कितना आएगा? 100%.
और 8 सिक्योर्ड होने के बावजूद भी 3 साल के ऊपर हो गया है तो कितना हो जाएगा 100%। तो इसका प्रोविजन कितना आएगा 19। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो प्लीज चेक द आंसर। सही है क्या आपका? अरे तो ठीक है, इसका 15 लाख और 11 लाख और ये 8 लाख और ये 10 लाख प्रोविजन उतना ही है, 25 लाख और कितना मैंने जितना बताया 19 लाख। इज दैट ओके? तो अब आपके एनपीए के रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है एनपीए का, वो भी हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं एनपीए का, ठीक है? तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी। जरा ध्यान से देखना। बैंक हैज गिवन द टर्म लोन ऑफ 25 लाख टू मिस्टर सैम, टू मिस्टर जॉन। सैम को दिया था टर्म लोन, ओके? मंथली इंस्टॉलमेंट 50,000, प्रिंसिपल अमाउंट 42,000, इंटरेस्ट इज 8,000, ड्यू डेट इज 31st December 2011. Sam does not make the payment until March 2012, 31st March 2012, मतलब 90 दिन आगे। एग्रीड? ड्यू डेट के और 3 महीने आगे, 90 डेज बाय एंड लार्ज। तो सैम का लोन बन गया एनपीए। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन को हमने दिया था ओवरड्राफ्ट, ओके? ओवरड्राफ्ट मतलब आप बैंक से पैसा ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो, मगर बैंक का एक रूल होता है कि जैसे आप ओवरड्रॉ करो ज्यादा, आपको कुछ दिनों में एक क्रेडिट एंट्री तो देनी पड़ेगी बैंक को। मतलब सिर्फ आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, आपको कुछ पैसा जमा भी कराना पड़ता है। मतलब अप टू 90 डेज आप विड्रॉ करते हो, ठीक है, अप टू योर लिमिट, मगर आपको कुछ वापस रीपेमेंट की भी एंट्री दिखानी पड़ती है विद इन 90 डेज। तो ऐसा लिखा है, सैंक्शन ओडी 5 लाख, अमाउंट ओवरड्रॉन 6 लाख, excess withdrawn 1 lakh, date of withdrawal is 31st December 2011. There is Mr. John do not pay any amount in the bank, then the account is treated as out of order. मतलब अगर कोई पैसा हम जमा नहीं कराए बैंक में तो हमारे अकाउंट को बैंक की भाषा में क्या कहा जाता है? आउट ऑफ ऑर्डर। अगर हमारा अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो फॉर 90 डेज, मतलब हमने पैसा जमा ही नहीं कराया 90 दिन तक, तो आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। मतलब पैसा जमा नहीं कराया तो आउट ऑफ ऑर्डर। 90 दिन तक मैंने पैसा जमा नहीं कराया तो मेरा बैंक अकाउंट वाज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज, दिस ओडी बिकेम एनपीए। ऑलराइट, नेक्स्ट, मिस्टर रमेश, इनको मैंने लोन दिया, किसके लिए? मैंने इनका बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराया था। मैंने इनका बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराया था, इन्होंने बिल लाकर दिया, मैंने डिस्काउंट किया और इनको पैसा दिया। और इधर कैश है इसके पास। ऑन द ड्यू डेट द बिल गॉट डिसऑनर्ड, ऑन द ड्यू डेट द बिल गॉट डिसऑनर्ड ऑन 31st December 2011। अगर 31st मार्च 2012 तक ऐसे बिल का रीपेमेंट नहीं हुआ, so then my dear friend this bill is treated as NPA, क्योंकि जो डिस्काउंट कराया था बैंक ने लोन दिया था, इसको अब हम क्या ट्रीट करेंगे? NPA। Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on the due date fixed by the bank and it is not fixed for more than how much? 90 days, it is an NPA। अब ये सुनने समझने के बाद में आपका दिमाग चलने लगता है कि सर समझ में आ गया कि ड्यू डेट के बाद में 90 दिन तक पेमेंट नहीं हुआ तो उसके बाद में उस असेट को हम एनपीए कहने लग जाते हैं। इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। आई हैव गॉट अनदर एग्जांपल ऑफ फार्मर। बैंक गेव अ लोन टू अ फार्मर एंड दिस लोन was given for a short duration crop. शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप मतलब जो जल्दी उगकर उसको आप बेच सकते हो, दैट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप. शुगर केन इज नॉट अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप. So there are two types of crop which takes more period to grow and one which can grow within 3 months, 4 months, etc. So boys and girls, agriculture advance was given.
He does not repay any amount for a period of 2 crop season. 2 क्रॉप सीजन के लिए वो पैसा नहीं देता है. अब देखो मैंने 90 डेज से वर्डिंग चेंज कर दी है, 2 क्रॉप सीजन, देन इट इज ट्रीटेड एज एनपीए. द होल पॉइंट विच आई वांटेड टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू वाज एनपीए का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसका मन में कोई भी जजमेंट लेकर मत जाना. ये आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से होता है, और आरबीआई की गाइडलाइन अलग अलग टाइप के लोन के लिए अलग अलग है. जैसे एजुकेशनल लोन को एनपीए ट्रीट करने की गाइडलाइन अलग है, एग्रीड. एग्रीकल्चर को दिए गए लोन की गाइडलाइन अलग है, स्टार्टअप्स को दिए गए लोन की गाइडलाइन अलग है, नॉर्मल बैंक लोन दिए हुए की गाइडलाइन अलग है. तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज को आप एनपीए और कैसे मानोगे. तो जरा वो क्वेश्चन के पास आइए आप. ये क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में. कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2. रीड कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2. लिख लो, नॉट एक्सपेक्टेड इन एग्जाम. मगर अगर आ गया तो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे. आने के चांसेस कम है, मगर आ गया तो हम करेंगे, क्योंकि मॉड्यूल में आपका एक कंसेप्ट कवर्ड है. From the following information, identify the non-performing asset of a commercial bank for the year ending 31st March 2013. Term loan 100 lakh on which interest remains past due for 3 quarters on 30 lakhs. 3 क्वार्टर से इंटरेस्ट नहीं मिला, ऐसा लोन कितना है? 30 लाख का. For 2 quarters on 2 lakh and for 1 month 10 lakhs. तो बेटा जी क्या ये एनपीए है क्या? मैंने कितना पीरियड समझाया था आपको? बाय एंड लार्ज 90 डेज. ये एनपीए है क्या? यस. क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3. तो ये एनपीए है 90 डेज का. 2 क्वार्टर मतलब 6 महीने, 6 महीने मतलब 180 दिन. तो ये भी एनपीए है क्या? यस. ये 1 महीने से ही ड्यू है, ये एनपीए नहीं है. तो एनपीए कितना हुआ बेटा? 30 + 20. अब तुम मुझे बोलोगे कि सर ये 100 लाख में से 30 + 20 50 और ये 10 60 ही हुआ, बाकी का 40 क्या? नलायको 40 का कोई डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है, 40 लोगों ने पैसे दिए. ऐसा मत सोचो करो भारत में हो तो क्या हर एक आदमी डिफॉल्ट ही करेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? 100 लाख का लोन है तो 100 लाख के लोन में से 30 ने डिफॉल्ट किया, जो डिफॉल्ट है 3 क्वार्टर से. बाकी का लोन है उसमें डिफॉल्ट है 2 क्वार्टर से. 10 लाख के लोन में है डिफॉल्ट है 1 महीने से. बाकी के लोगों ने पैसा बराबर टाइम पर पेमेंट कर दिया होगा. सो कैन आई से द अमाउंट इज 50 लाख. ये समझ में आ रहा है कि कैसे आया? नेक्स्ट, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 200 लाख ऑन विच इंटरेस्ट रिमेन्ड पास्ट ड्यू फॉर 3 क्वार्टर ऑन 60 लाख, एनपीए. 2 क्वार्टर्स ऑन 40 lakhs, एनपीए. 1 month of 20 lakhs, नॉट एन एनपीए. 90 डेज का टेन्योर होना चाहिए. तो बेटा एनपीए की अमाउंट कितनी हुई आपके यहां पे? 60 + 40 कितना आएगा? 100 lakhs. अगला देखो क्या है? बिल परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड ₹300 lakh on which interest remained unpaid for 3 quarters for 902 lakh, एनपीए. ये कितने क्वार्टर से? ये 2 क्वार्टर से बेटा. TW2 पूरा नहीं छपा है. TW2 2 क्वार्टर्स फॉर 60 लाख एंड 1 मंथ फॉर 30 lakhs. तो बेटा ये एनपीए नहीं है, ये दोनों एनपीए. तो कितना आएगा बेटा? 902. ओ सॉरी 90 है ये. 90 902 नहीं है, 90 + 60 lakh इज हाउ मच? 150 lakh. सो व्हाट इज द टोटल एनपीए? 300. अब इसका टेन्योर अगर दिया तो हम प्रोविजन भी क्रिएट कर सकते हैं. तो एनपीए कैसे निकालना समझ में आया क्या? हैप्पी? और एनपीए की स्टाइल होती है सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल फॉर 1 year, डाउटफुल फॉर 1 to 3 year एंड डाउटफुल फॉर मोर देन 3 years एंड लॉस असेट. दैट्स लवली. एनपीए समझ जाने के बाद में अब आपको और एक इजी प्रॉब्लम कराता हूं जो एग्जाम में आई थी.
मैं आपको चेक की अकाउंटिंग कैसे होती है बैंकिंग में यह समझाता हूं। चेक, पता है किसी को चेक की अकाउंटिंग कैसे होती है? मालूम है कुछ? सपोज यू डिपॉजिट अ चेक इन बैंक, होता क्या है फिर? पैसे किसे मिलते हैं? यू डिपॉजिट अ चेक इन बैंक, पैसा किसे मिलता है? नहीं पता? तुमने तुम्हारे अकाउंट में पैसा जमा कराया, पैसा किसको मिलेगा? तुम्हें ही मिलेगा ना, तुम्हारे अकाउंट में ही मिलेगा। तो एक है बैंक, ये बैंक है, और एक है यहां पर तुम्हारा अकाउंट। तो पैसे किसको मिल रहे हैं? तुम्हारे अकाउंट में मिल रहे हैं ना। बैंक को क्या मिल रहा है? बैंक को कुछ मिल रहा है। आई गेट अ चेक, आई गो एंड डिपॉजिट इन द बैंक। बैंक वो पैसा मेरे दूसरी जो कोई बैंक होगी उस बैंक में से पैसा विड्रॉ कर कर मेरे अकाउंट में जमा करा देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अ चेक फ्रॉम दिस क्लासेस, आई टेक दैट चेक, आई डिपॉजिट इन माई आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट। आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट वाले क्या करते हैं? जाते हैं उनके बैंक के पास, वहां से पैसा लाकर मेरे अकाउंट में डाल देते हैं। हाँ या ना? तो कुल मिलाकर एक बात बताओ, बैंक की अकाउंटिंग सीख रहे हैं हम, क्या ये चेक बैंक का असेट है क्या? द आंसर इज नो। बैंक के असेट किस बात की? बैंक के असेट नहीं है, बैंक एजेंट है सिर्फ। बैंक एज ए एजेंट जाती है वहां पर, मेरा पैसा कलेक्ट करती है और मेरे अकाउंट में डाल देती है, बात खत्म। बैंक की लाइबिलिटी है क्या? नहीं। लाइबिलिटी किस बात की? अगर सामने वाले आदमी ने पैसा नहीं दिया, डिसऑनर हो गया चेक, बैंक भी हाथ खड़े कर देगी, बोलेगी भाई हम गए थे पैसा लाने के लिए, चेक डिसऑनर हो गया, सो देयर इज नथिंग विच वी कैन गिव यू। तो ना बैंक के एसेट है ना बैंक के लाइबिलिटी है। तो इसका मतलब यह हुआ इसकी अकाउंटिंग होनी ही नहीं चाहिए। बट हर रोज बैंक के पास कई सारे चेक आते हैं, कई सारे। पॉसिबली एक बैंक में आते होंगे चेक, एक अराउंड 2000-3000 चेक दिन के। ये हार्ड कॉपी होते हैं चेक के। मान लो एक आधा चेक गुम गया तो नहीं गुम सकता। मेरा तो चेक गुमा हुआ है, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया पैसा, मैं वेट कर रहा था आज ही क्लियर होगा, कल ही क्लियर होगा, परसों ही क्लियर होगा, नहीं हुआ। बैंक के पास गया, अरे भाई बैंक पैसा क्यों नहीं क्लियर हो गया? तो बोलते कि यार वो चेक गुम गया, आपका जो दिया था ना वो कहीं गिर गया। या बैंक से वो चेक सॉइल हो गया, खराब हो गया, उस पर चाय गिर गई, पानी गिर गया, क्या करेंगे? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? एट द एंड ऑफ द डे तुमने चेक वहां पर दिया, क्लियर होने के पहले चेक गुम गया, क्लियरिंग हाउस में जाने के पहले चेक गुम गया, क्या करोगे? तो बेटा जी आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से जो चेक आप बैंक में जमा कराते हो वो सभी चेक की एक अलग रजिस्टर मेंटेन होती है जिसको कहते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट, जिसमें बैंक को एक हक दिया जाता है, एक राइट दिया जाता है कि वो दूसरे बैंक के पास जाके बोल सकती है चलो पैसा दो। इसलिए वो बैंक की असेट, बिल्स फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट। मगर जैसे ही वो असेट कलेक्ट करेगी, बैंक की एक लाइबिलिटी भी होती है, क्योंकि बैंक को वो पैसा कलेक्ट करके खुद के पास नहीं रखना पड़ता है, वो पैसा कलेक्ट कर किसको देना पड़ता है? जिस अकाउंट होल्डर का है उसका पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक अकाउंट है बिल्स फॉर कलेक्शन और एक है बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट, बिल्स फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट। ये दोनों अकाउंट मिरर कॉपी होते हैं एक दूसरे की। तो अगर बैंक कहती है कि मेरे पास 25 करोड़ के चेक है तो वो उसकी एसेट हुई, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर मान लो बैंक कहती है कि उसमें से मैंने 25 करोड़ रुपए आ गए मेरे पास, तो बैंक और एक चीज दिखाएगी कि ये मेरी लाइबिलिटी भी है। तो ये वर्किंग कैसे होता है देखो, दो अकाउंट बनेंगे, बिल्स फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट, नाम ही है ऐसा, और दूसरा कौन सा बनता है? बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट। अब मैंने बोला 25 करोड़ की एसेट है मेरी, तो बैंक को और एक चीज लिखनी पड़ेगी दूसरी बुक में कि 25 करोड़ की लाइबिलिटी भी है। फिर बैंक बोलेगी उसमें से
2 करोड़ के चेक ऑनर हो गए, मतलब मेरी असेट के पैसे आ गए, तो बेटा उतनी ही पैसे मैंने लाइबिलिटी भी डिस्चार्ज कर दी। मैं कहूंगा कि मेरे 3 लाख के चेक, 3 करोड़ के चेक डिसऑनर हो गए, बैंक कहे कि डिसऑनर हुए तो हुए, मुझे क्या लेना देना, मेरी थोड़ी ना लाइबिलिटी है, मेरी लाइबिलिटी भी कम हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस मैकेनिज्म? सो चेक रजिस्टर जो मेंटेन किया जाता है उसको कहते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट एंड बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट। इट कैन कम फॉर अराउंड 4 मार्क्स। मगअप करने जैसी कोई चीज नहीं है, बच्चा मगअप करके जाता है कि अगर इधर डेबिट किया तो इधर क्रेडिट, इधर डेबिट किया तो इधर क्रेडिट, उधर क्रेडिट किया तो इधर डेबिट, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्स फॉर कलेक्शन चेक के लिए अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। सो आइए अब हम ये नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन का। Here is the concept. You are all requested to come down. To concept question number 4. Please come down to the concept question number 4. Read what is this say. Bharat Bank Limited provides you the following information. Bills for collection as on 1/4/2013. ओपनिंग बैलेंस, तो असेट के डेबिट साइड में 14, असेट के डेबिट साइड में 14। जैसे ये 14 लिखा वैसे ही मुझे करस्पॉन्डिंग क्या बनानी पड़ेगी, लाइबिलिटी 14, बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट आइटम आ गया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर 13-14 बिल रिसीव्ड फॉर कलेक्शन, कितने बिल्स मिले, कितने चेक मिले, तो बेटा 129, तो मैं 129 मिले तो असेट बढ़ी। उसी के साथ साथ मेरा बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट में भी जाएगा। जरा अगर एंट्री देख पा रहे तो देखो कितनी ब्यूटीफुल एंट्री है। एंट्री इज बिल्स फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट। आई रिपीट सर, द एंट्री इज बिल्स फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट। बिल्स फॉर कलेक्शन इज 129 एंड बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी इज ऑल्सो हाउ मच, 129। मूव ऑन, नेक्स्ट क्या है, बिल्स कलेक्टेड 94, पैसा आ गया तो मेरी असेट कम हो जाएगी, मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट 94, यस और नो। और इसका सेकंड करस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहां पे आ जाएगा, लाइबिलिटी के डेबिट साइड में। एग्रीड? ये कौन से हुए बेटा जी, जो कलेक्टेड हो गए, जो ऑनर्ड हो गए, और जो डिसऑनर हो गए बैंक कहते मुझे उसमें भी कोई लेना देना नहीं है। डिसऑनर हुआ तो भी मेरी असेट कम और मेरी लाइबिलिटी भी उतने से कम। तो देखो क्या लिखा है, बिल डिसऑनर्ड एंड रिटर्न 11.01, सो कैन आई नॉट क्रेडिट इट? बिल्स फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट क्रेडिट इट एंड बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट इट। से यस बॉयज एंड गर्ल्स, ये डिसऑनर की एंट्री होगी, बचा हुआ क्या, क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड टू बैलेंस, सॉरी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये 2 ही आएगा ना रे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। आसान लॉजिक था ये, चलो कंप्लीट कर लो। ये जरा अकाउंटिंग एंट्रीज की पोस्टिंग कैसे हुई जरा ध्यान से देख लो। Done beta? Wonderful. Can we move on now?